संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, आइए मिलते हैं छत्तीसगढ़ के गजेंद्र कुमार जी से।
उनका परिवार पीढ़ियों से दामाखेड़ा पंथ से जुड़ा था, लेकिन उनकी समस्याएं कभी खत्म नहीं हुई। गजेंद्र कुमार पहले ही 2 बार अपनी किडनी में स्टोन के ऑपरेशन करवा चुके थे, लेकिन उनकी तकलीफें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। किडनी में जलन की समस्या ने उनकी जिंदगी को जैसे जहन्नुम बना दिया था। दर्द इतना था कि वो ठीक से सो भी नहीं पाते थे। तब उनकी भाभी ने पूर्ण गुरु के बारे में बताया, लेकिन गजेंद्र के मन में शंका थी। उन्होंने सोचा, क्या वाकई किसी गुरु के शरण में जाने से मेरी समस्या हल हो सकती है? फिर भी उन्होंने कुछ दिन बाद साहस करके नाम दीक्षा ली, और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनकी किडनी की जलन, जो दवा से भी ठीक नहीं हो रही थी, नाम दीक्षा के बाद खुद ब खुद गायब हो गई। जब उन्होंने डॉक्टर से चेकअप कराया तो रिपोर्ट बिल्कुल साफ आई। दर्शकों, पूर्ण गुरु की शरण में जाने से हर दर्द का इलाज संभव है। तो आइए सुनते हैं गजेंद्र जी की पूरी कहानी, उनकी आपबीती कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? गजेंद्र कुमार साहू। गजेंद्र कुमार जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम खुरसिंगा, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। गजेंद्र कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 15 मई 2018। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? अपने माता पिता के अनुसार से मैं दामाखेड़ा कबीर पंथ से नाम दीक्षा लेते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ से 18 से 20 साल से जुड़े रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? ये ऐसी है, भगत जी की शारीरिक कष्ट मेरा इतना बढ़ गया कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि भक्ति साधना क्या है करके। इसी दरमियान मेरे को ये जानकारी मिला कि यहाँ ऐसे भक्ति करने से लाभ होता है करके। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से कुछ न कुछ लाभ अवश्य होता है। आपको क्या परेशानियाँ थी? मेरे किडनी में इन्फेक्शन बढ़ गया था भगत जी। उससे पहले 2 बार स्टोन को निकलवाए थे ऑपरेशन के द्वारा, लेजर ऑपरेशन के द्वारा 2 बार स्टोन निकलवाए थे। और इसी दरमियान मेरा तकलीफ इतना बढ़ गया कि 2 महीने के अंदर गया था, ऐसे सीरियस हो गया था कि बहुत नाजुक हो गया था मेरी स्थिति इलाज कराते कराते। ऐसा स्थिति आया कि मैं अब बचूंगा ही नहीं ऐसा करके। उसी दरमियान मेरे भाभी पहले से नाम दीक्षित था 6-7 महीने पहले से, तो उसने बोला कि, और मेरे पत्नी बोला कि एक बार चलो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके देखते हैं कि क्या होता है, चलो देख लेते हैं। ऐसे आप तो इलाज करा रही हैं, कम से कम देख के चलो देखते हैं करके। इसी दरमियान मैंने 15 मई 2018 को नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज जी के। उस दरमियान मेरे को पता नहीं था कि मैं ऐसा कहता था कि कोई गुरु संत थोड़े ठीक करेगा, डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, ऐसा मैं मान रहा था। ये मेरे को विश्वास ही नहीं था कि कोई गुरु ऐसा कर सकता है, ठीक कर सकता है ऐसे करके। फिर 15 दिन मैं ऐसे तैसे जैसे भी अपना बताए परमात्मा की जो ज्ञान है उसके आधार थे भक्ति साधना कुछ टूटी फूटी भाषा में कर रहा था, साधना सही नहीं कर पा रहा था मैं। और इसी दरमियान मेरे को ऐसा स्थिति बिगड़ गया कि मैं समझ नहीं पा रहा कि ठीक होऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। मेरा नाजुक स्थिति हो गया था। उसी दरमियान 15 दिन बाद ऐसा एहसास हुआ कि मालिक के शरण में गया, तो फिर वो बोले, एहसास दिलाए कि अंदर से आत्मा जगह की नहीं, आपका नाम सही नहीं है। और उसी दरमियान नाम को सही कराने के लिए मैं शुद्धिकरण कराया, नाम सही नहीं चल रहा था, इसे करके जानकारी हुआ। जस्ट शुद्धिकरण कराया, मेरे 24 घंटा भी नहीं हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि मेरे को एकदम से शारीरिक जो तकलीफ था उसको पूरा शांत कर दिया परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पूरा ठीक करके कर दिया। ऐसा लाभ हुआ भगत जी। किडनी इन्फेक्शन के कारण से ऐसा फीवर होता था कि जैसे हाथ को जैसे छूने से अग्नि की जलन जैसी होता था सर। मैं अपना नाम शुद्धिकरण किया सर जी 5 जून को। उस दिन से अब तक दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और बीमारी भी दूर हो गया। अभी तक कोई ऐसी दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ा मालिक की दया से। अगर कोई भी मेरे को इंटरव्यू देख रहा है कोई भाई भी, उसको अगर अविश्वास हो तो ये मेरा रिपोर्ट देख सकते हैं, मैं साथ में लाया हूँ। और इसको रिपोर्ट को देखने के बाद डॉक्टर जी बोल देखे थे हमेशा के लिए दवाई खाना पड़ेगा और इसका इलाज हो गया है करके बताए थे भगत जी। जब तक ये हो गया तब तक दवाई खाना ही पड़ेगा ऐसा बताए थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद दवाई खाना भी बंद हो गया और मैं नियम फॉलो किया। संत रामपाल जी महाराज जो बताए मर्यादा, उस मर्यादा के अनुसार भक्ति साधना करने लगा, उसी के अनुसार से मैं ठीक हो गया भगत जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बहुत ही अद्भुत लाभ दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? विभिन्न अन्य चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता है और परमात्मा ने ज्ञान गंगा जीने की राह गीता तेरे ज्ञान में पुस्तक भी वितरित कराता है और उसको पढ़कर और ज्ञान को सुनकर समझकर जो सत्संग चलता है उसमें पीली पट्टी चलता है, उसको देखकर अपने नज़दीकी नाम दाम केंद्र में जाकर अपना कल्याण करा सकते हैं सर जी। धन्यवाद सर। सत्संग। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से
उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और वहीं से मुद्रित है। मुद्रक प्रकाशक है मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। यहां देखिएगा, हम इसको पढ़ेंगे 30 पहला स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ से। ये व्यास जी और नारद जी की वार्ता हो रही है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से किया था। देव अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि, देखो अब नारद जी का ज्ञान सुन ले। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक यानी उनके मालिक भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी हम पहला स्कंद 29 पृष्ठ पर आ गए। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ, यानी रजगुण ब्रह्मा सिद्ध हुआ। मुझे सात्विक शक्ति मिली, सतगुण विष्णु हुआ और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से भी संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्यों को सदा सफल करते हुए आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं
उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और देखो कमाल कर दिया, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा जी के, प्रकृति देवी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अपने आत्माओं, ये आ गया अंत हमारे श्री विष्णु भगवान के अध्यात्म ज्ञान का। ये कहते हैं कि मैं दुर्गा यानी श्री देवी जी की भक्ति करता हूँ और इससे ऊपर मैं किसी भगवान से परिचित नहीं हूँ। मेरे लिए फाइनल गॉड है। अपना आत्माओं, श्री देवी जी क्या कहती है ये वचन और सुन लो। अब इस शिक्षा का आपके लिए एक वरदान होगा कि हम भगवान पहचानेंगे और भक्ति कोई कठिन नहीं, 2 मिनट में अपना सत भक्ति हुई, सब एक रस समाज हो गया तो रोज भक्ति बढ़ेगी। अब तो हमारे को नियम खंडित करवा देता है समाज में, यो ज्ञान अभी फैला नहीं है तो विरोधी घने हो जाते हमारे बच्चों के। धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। अब देखना, अब देवी जी क्या बताती है। वो कहती है हिमालय जी को, राजा हिमालय को ज्ञान दे रही है और कह रही है कि वैसे तो कह रही मेरी भक्ति कर, लेकिन इससे मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं। फिर कहे कि उस ब्रह्म की भक्ति करो, ब्रह्म की, उसका ओम नाम है और उसको टारगेट मानकर, इष्ट मानकर ब्रह्म की भक्ति करो। ब्रह्म लोक में चले जाओगे और सब बातें छोड़ दो, यानी मेरी भी पूजा त्याग दो। देखिएगा ये 7वां स्कंद है। संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश यानी ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, ये तो उन्होंने अपने बारे में बताया। फिर यहां से कहा कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। देखना, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है। अब देखो, दुर्गा के ज्ञान से भी परिचित होते चलना। श्री दुर्गा जी के ज्ञान से वो ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कह रही है, जबकि यह सर ब्रह्म है। फिर भी ध्यान से सुना, वही उसी सबकी वाणी है, सबका मन है, यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। ये तो वही बात आगे नीचे आते हैं। उसका ओम नाम है और ब्रह्म को लक्ष्य मानकर जीवात्मा जाप करे। यहां स्पष्ट कर दिया, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अर्थात मेरी पूजा भी मत करना और कोई पूजा नहीं करना, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इस ज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ओम नाम जाप करो, ब्रह्म को इष्ट मानकर, नथिंग एल्स, और कोई नहीं पूजा करनी, तो वहां उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो कहाँ रहता है ये देखना 563 पृष्ठ पे। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। हो गया, ये ब्रह्मलोक में रहता है वो ब्रह्म।
और ओम नाम का जाप करो, ब्रह्मलोक में चले जाओगे उसके पास। इतना सा ज्ञान देवी ने दिया। अपने आत्माओं, देवी जी ने एक बात और स्पष्ट किया है कि वेदों को छोड़कर यानी और किसी भी ग्रंथ का आश्रय लेकर आध्यात्मिक साधना मत करना, वो ज्ञान भ्रमित है। इसके दिखाते हैं आपको, ये 7वां स्कंद और संक्षिप्त देवी पुराण, देवी भागवत 470 से लेंगे हम। यहां से प्रसंग चल रहा है। श्री देवी जी कहती है, राजन यानी पर्वतराज, ये हिमालय को बता रही है, हिमालय को श्री देवी बता रही। क्या बता रही है? यहाँ आ जाते हैं हम 571 अपने काम की बात पढ़ेंगे। 571 पर वेद में कहे गए धर्म का परित्याग करके जो अन्य धर्म का अवलंब कर लेते हैं, राजा को चाहिए कि उन अधार्मिक व्यक्तियों को अपने राज्य से निकाल दे। ब्राह्मण लोग उन अधर्मिकों से न बातें करें और न उन्हें अपनी पंक्ति में बैठावें। और देखो फिर क्या लिखा है कि इस जगत में तरह तरह के अन्य जितने शास्त्र हैं, वे सभी श्रुति और स्मृति से विरुद्ध होने के कारण तामसी कहे जाते हैं। उन शास्त्रों का नाम है वाम, कपाल, कौलक और भैरागम। शिव ने मोह में डालने के लिए यानी धोखा देने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए इन शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। इनमें कहीं कहीं वेदों से अविरुद्ध अंश हैं, यानी वेदों के अनुसार ही हैं। वेदज पुरुष उस अंश को ग्रहण कर ले तो कोई दोष नहीं। वेद से भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज सर्वथा अनधिकारी है। अतएव वैदिक पुरुष सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके वेद का ही आश्रय ले, यही शाश्वत धर्म है। अब इसमें आपने ये तो पढ़ा, थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर कर दें कि वर्तमान के ब्राह्मण ये जो थे, ये हमारे जो आदि शंकराचार्य और जितने वर्तमान के शंकराचार्य ये ब्राह्मण हैं सारे। हिंदू धर्म के गुरु ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण हैं कलयुग के ब्राह्मण। और इन कलयुग के ब्राह्मणों को इस देवी पुराण में क्या संज्ञा दी है ये पढ़ा दो थोड़ा, क्योंकि ये हमारे धर्मगुरु इन कहते हैं कि हम पुराणों में जो लिखा सत्य मानते हैं। तो कृपा इन एक बार फिर पढ़ लो और सुधर जाओ। ये दास की यही प्रार्थना है, समाज शाना हो गया। देखो ये वही देवी भागवत चल रही है, आपको दिखाते हैं 414 पृष्ठ पर दिखाते हैं। ये 6वां स्कंद है और संक्षिप्त देवी भागवत पृष्ठ 414। यहां से हम शुरू करते हैं। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, व्यास जी बता रहे हैं। व्यास जी के ज्ञान का सुन लेना, कितना ज्ञान है इसको। राजन, ये निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब देख लो हमारी कल सतयुग के ब्राह्मणों के बारे में वेद व्यास जी बता रहे हैं कि वह वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते है। इनमें कल्पित है, इन पढ़ा वेदों को। दुर्गा तो कह रही है कि और किसी की पूजा नहीं करनी, मेरी भी पूजा छोड़ दे और केवल एक ओम जाप से और ब्रह्म को उद्देश्य इष्टमान और उसकी पूजा कर ब्रह्म लोक में जाएगा, जब तेरा कल्याण होगा। बाकी तक की तड़ले ढोए जाओ, बकवाद करते रहो अपने आत्माओं। और व्यास जी के ज्ञान का पता लग गया आपने, यू कितना विद्वान था। अब पुण्यात्माओं ये ना समझना कि किसी ने वेदों को लिपिबद्ध कर दिया, पुराण लिख दिए। वेद उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने बोले नहीं। जैसे यू ज्ञान बोला किसने, श्री कृष्ण में प्रवेश करके इस काल भगवान ने ब्रह्म ने बोला और लिख दिया वेद व्यास में, फिर उसने प्रवेश करके लिखवा दिया। तो इसमें वेद व्यास का था खोखा प्रयोग किया, उसने खुद ज्ञान कति नहीं था। इसमें क्या लिखा वेदों में? तो इसलिए कह रहा है कि सतयुग के ब्राह्मण
वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। और दुर्गा जी कह रही है सब पूजाएं मेरी भी त्याग दो, ब्रह्म साधना करो, ओम नाम का जाप करो, नथिंग एल्स, और ब्रह्म लोक की साधना प्राप्त होगी। और फिर ब्रह्म क्या कहता है वो आपको बताएंगे। अब पहले आगे चलते देखिए, ये 414 पर हम पढ़ रहे हैं। व्यास जी उत्तर दे रहे हैं कि हे राजन, निश्चय ही सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। यानी मंदिर के लठ भी इन गढ़वारा के सतयुग तो प्रारंभ हो रहे वेद विरुद्ध ज्ञान करते हुए। अब देखो यहाँ क्या बताया है इसी में 414 पृष्ठ पे, संक्षिप्त देवी भागवत छठा स्कंद के चारों युगों के ब्राह्मणों की सतिथि बताते हुए व्यास जी आ रहे हैं। धर्म की यही सतिथि त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सतिथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, ये दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास बता रहा है कि ये वर्तमान के ब्राह्मण हैं जो ऐसे जुल्म कराया करते थे। परमेश्वर आए, कबीर साहब उनके पीछे ला दिए। अब सुनाऊंगा आपको कथा भगवान के बारे में के साथ इन्होंने के जुल्म कराया था, जो यही ज्ञान जो दास आपको बता रहा है और इन सदग्रंथों में दिखा रहा है तो आप मान रहे हो। नहीं तो ये धर्मगुरु ईव फिर आग लवा दी थी ने, पर समर्थ की ओट थी। क्रोथा कांड यही कारण था। सत्कर मानना तुम आप जी कि इनकी दुकान बंद होने के कागार पा गई थी। इनको पता लग गया था थारे जूते लगेंगे, थोड़े दिन में जनता नहीं कहेगी हमारे पूर्वजों का नाश कर दिया तुमने। उनको भूत बनवाया, गलत साधना करवा के हंड धक्के खानते अन्यों कई श्राद्ध निकालो, अपना पेट भरने की खातिर ये और घाटा जुड़वा दिया। जब वेदों में प्रमाण नहीं, वेदों में लिखा श्राद्ध निकालने नहीं चाहिए, तो मूर्खों के साधनाएं हैं कर्मकांड करना। और ये ऋषि भी मानते हैं, कहा ये है तो ऐसा ही, फिर हमारे से क्यों करवाए गए तुम अपने लालच और लोभ में। तो पुण्यात्माओं, अब आपको बताते हैं कि अब दुर्गा जी के अध्यात्म ज्ञान का तो ये आ गया अंत कि ब्रह्म की पूजा करो, केवल ओम नाम है, ब्रह्मलोक में चले जाओगे बस। अब ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने दिया? ये इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी ने दिया। यो ब्रह्म है, यो काल कहते हैं हम इसको संत लैंग्वेज में। और इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके यो ज्ञान दिया। ये कैसे प्रवेश होता है ये थोड़ा सा आपको क्लियर करेंगे। पहले आपको शिव पुराण दिखाते, थोड़ा सा इससे कंसेप्ट क्लियर होगा। पुण्यात्माओं, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हो ये याद रखना आपने। आत्म कल्याण के लिए वो समर्थ है, आपके प्रारब्ध पाप को वो बहुत आसानी से खत्म कर देगा, पर विश्वास दृढ़ करना पड़ेगा, तब वो अपनी कलम उठाएगा आपके पाप काटने के लिए। नहीं तो फिर उड़े माता धोकन लाग जाओगे, जाके ठीक होते तुम झाड़ा सलवान आओ गेड़ा, तो थोड़ा समय लगेगा। ऐसा ये दास नहीं होने देगा, क्योंकि आपको ज्ञान देने के लिए यहाँ बुलाया जाता है। आपके लिए कितनी व्यवस्था भगवान दासों से अपनों से करवा रहा अपने बच्चों के लिए, केवल आपको विद्वान बनाने के लिए, भगवान पहचानने के लिए, आपका कल्याण कराने के लिए। अब पहले ये बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है वो काल है। वो किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता, वो न सोच ले ये शिव जी ही परमात्मा है। किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, न सोचे ये विष्णु ही भगवान है। तो इन विष्णु और कर शिव जी का ब्रह्मा का भ्रम पैदा हो गया कि हम भगवान हैं। इसी बात पर इन दोनों का झगड़ा हो गया, विष्णु का और ब्रह्मा जी का। इस बात पे कि ब्रह्मा जी कहते मैं तेरा बाप, मैं तेरा जनक हूं, मैं सारी सृष्टि की उत्पत्ति करता हूं, प्रजापिता हूं। विष्णु जी कहने लगे तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, मैं तेरा बाप हूं। लड़ पड़े, झगड़ा हो गया। इनके बीच बचावा करने के लिए इनके पिता इस काल रूपी ब्रह्म ने
ऊपर से सतम एक पिलर खड़ा कर दिया, शिवलिंग बोलते हैं उसको, तेजो में लिंग। ये उस प्रकाश में पोल को एंड को ढूंढने के लिए, उस और छोर को जानने के लिए ऊपर नीचे चक्कर काटने लगे, झगड़ा बंद हो गया। फिर वो स्वयं आ गया शिव रूप धारण करके, अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। फिर उनको ज्ञान देने लगा कि तुम काहे के भगवान हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान नहीं हो। अब थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ थोड़ा कम दिखाएंगे, गर्मी का मौसम है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये देखिएगा, ये शिव महापुराण, ये विद संस्कृत है, या दया रही परमात्मा की कि ये अभी तक संस्कृत विद्यमान रही, मिल गई हमारे पास। ये देखिएगा, ये श्री शिव पुराण, इसके अनुवादक हैं विद्यावरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी, मिस्र कृत हिंदी टीका सहित। ये खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से। यहां देखना, इसका तीसरे स्कंद में, इसके ये देखना 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता, ये विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले कि हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों के साथ संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, सो रहे थे। उसी समय ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन भगवान विष्णु से पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सोए पड़े हो। हे वत्स, हे बेटा उठो, मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु के अंदर मत छो उठा, पर ऊपर तय क्रोध रोके रहे। क्रोध हुआ परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों है, यानी टेढ़ा मुंह क्यों कर रहा है, आंखें तरेर रहा तो। ब्रह्मा जी बोले, वत्स बेटा, विष्णु आपको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूं। विष्णु जी बोले, ये सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। मुझे पुत्र कहना बढ़ता है। अब घना नहीं सुनाता, आगे चलते हैं। एंड के बाबू मैंने आपको बता दिया। इनका क्या हुआ, इनका झगड़ा हो गया, देवता फूल बरसाने लग गए। वो देवता राजी हो गए, देखो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारे देवताओं के काम है, ये थोड़ा दिखा दूं ना, यो रहेगा अधूरा। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उत्सुक हो गए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस अद्भुत युद्ध देखने को चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। बताइए, हमारे देवताओं के काम है। देवता कहें अच्छी आत्माओं को, नेक पुरुषों को। अब दो भाई लड़ रहे हैं और ऊपर तो दूसरे नो के शाबाश, देखो कौन सा हारा जीतेगा, मरो कटके है। ये हमारे देवताओं के लक्षण। और ये हमारे भगवान तो एक नो का मैं तेरा बाप, रो नो का मैं तेरा बाप, गुट्टम गुट्टा। चौथी कक्षा के बालक लड़ा करें, ये ऐसी बुद्धि उनकी होती है। और टीचर कहता उनको बुलाकर, क्यों झगड़ रहे थे? एक कहता जी इन्होंने बोला तेरा बाप, मैं तेरा बाप। दूसरा कहता ना जी इसने पहले कहा था है। और गुट्टम गुट्टा एक दूसरा पुड़ता पाड़ रखे। इन भगवानों की पूजा करने को ये हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य बताया करते। और ये बताइए हमारे जो है ना, इसी को लूम डाल रखा है। अब ये भगवान नहीं है, दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास कह रहा। देखिएगा पृष्ठ नंबर 17 पे, शिव पुराण 17 पृष्ठ, ये है विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार
भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके आगे दिखाते हैं, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसको? ब्रह्मा और विष्णु को, कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है, इस कारण से मैंने दो रूप नहीं, उसके दो रूप नहीं हो सकते उनके। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान शिव रूप धारण करके आ गया, वो मेरा दूसरा रूप है किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, वो लिंग खड़ा कर दिया ना, वो तनु का निष्कल है, निष्कल निष्फल नहीं है, निष्कल है। और ईश्वर रूप सगुण है, मैं तेरे सामने खड़ा शिव रूप धारण करके, ये मेरा सगुण रूप है और निराकार निष्कल, उसकी कोई शकल नहीं। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध है, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश मान लिया, तुमने अपने आप को अज्ञानता से भगवान मान लिया, ईश मान लिया, कर्ता मान लिया, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। क्या बताता है कि मैं ब्रह्म हूं, जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव सत्तोत व्यापक, ये मैं होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूं, यह मेरा है, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं हो सकता। फिर आगे दिखाते हैं। अब ये 18 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे, 18 पृष्ठ पे आगे हैं। 10वां अध्याय 9वां यह समाप्त होता है। इति श्री महापुराणे विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय, ये 10वां शुरू होगा। 10वें के हम यहाँ पर आते हैं। 10वें श्लोक में ये काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है। ब्रह्मा को उत्पत्ति और विष्णु को पालन, जो महकमा दिया है विभाग, वो मैंने दिया है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत यानी दो जॉब, दो विभाग रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने वह समर्थ नहीं। अपने आत्माओं हमने अपने उस प्रसंग को क्लियर करना है, जो प्रसंग ये कंसेप्ट दास क्लियर करना चाहता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है, ये धोखा देकर इनको रखता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। जैसे गीता जी में श्री कृष्ण से बाहर निकल कर ये क्या दिखाता, देखो ये है मेरा विराट रूप, मैं काल हूँ, मैं किसी के सामने नहीं आता, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। मेरे कर्म चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में पता है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म होली अर्जुन, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे कर्म अलौकिक है, दिव्य है, मेरे जन्म भी अलौकिक है। ये कर्म ऐसे अलौकिक है। अब बताए, अब बाकी शाम को दिखाएंगे। अब थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करते हैं। अब यहाँ हम जो प्रसंग चल रहा है कि ये सिद्ध हो गया कि ये बोलने वाला पांचवा है, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी और रुद्र से, इनसे पांचवा है ये बोल रहा है। ये कौन है? ये ब्रह्म है, ये काल है। ये ऐसे धोखा देकर रखता है, किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता, किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में। तो इनको भ्रम हो जाता है। लोग कहते हैं आप ही परमात्मा हो, आप छुपाए बैठे हो। इस कारण से ये लड़ भी पड़े, आपस में झगड़ा भी कर लिया। अब इनको बता दिया कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। यू आर नॉट गॉड। ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, ना शिव ये महेश ये तुम भगवान नहीं हो। और पुण्यात्माओं, ये हमारे शंकराचार्य और हमारे गुरु आचार्य मंडलेश्वर, ये हमारी इनों ये भगवान है। और इनका इतिहास और पुराण बताओ, ये भगवान है ही नहीं। तो ये हमारे साथ कितना धोखा कर रहे थे। अब आपको दिखाते हैं ये क्या कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। ये जो पांचवा बोल रहा है शिव पुराण का, ये रुद्र विद्वेश्वर संहिता। अब देखना ये 19 पृष्ठ है, वही शिव पुराण
विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 का पढ़ रहे। यहां लिखा है कि सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं और यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके समण से मेरा समण होता है। ओंकार नामक मंत्र जप करो। जो बता रहे हैं तुम भगवान नहीं हो, इसलिए उसके बारे में मंत्र जप करो। अभिमान का, यह अभिमान का दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही स्वरूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके समण से मेरा समण होता है। ठीक हो गया। उत्तर की ओर से के मुख से अकार का, पश्चिम के मुख से उकार का, दक्षिण के मुख से मकार का, पूर्व के मुख से बिंदु का, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। वह सब एक होकर ओम एका अक्षर हो जाता है। ये मेरा मंत्र है। सीधी सी बात है, ये ओम एका अक्षर ये मेरा मंत्र है। कौन कहता है? ये शिव पुराण बोलने वाला, जो ब्रह्मा और विष्णु को पुत्र कहता है, तो ये इनका पिता है। ये काल रूपी ब्रह्म है और इसी ने गीता जी का ज्ञान दिया है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है ओम इति एकाक्षरम। जो एकाक्षर आपने भी पढ़ा शिव पुराण में, विद्वेश्वर संहिता में, कि ये मेरा एक ओम अक्षर, एक अक्षर है। इन सब से मिलकर ओम, ऐसे, ऊ से, मैं से, बिंदु, नाद से, इन 5 का ये गठन होकर एक अक्षर हो गया ओम इति। और यही 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा। श्री कृष्ण का कोई रोल नहीं गीता के ज्ञान में, ये ऐसे धोखा देता है। तो इसने कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का ये एक ओम अक्षर है, एक अक्षर, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करने का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह परियाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़ते समय इसका जाप करता जाता, सयाति परमाम गति, जो इस ओम से मिलने वाली परम गति है वो प्राप्ति होती है। वो दुर्गा जी ने, देवी जी ने देवी पुराण में बताई दिया 7वें स्कंद में कि ओम का जाप करो, ब्रह्म टारगेट उद्देश्य इष्ट मानो। ये ब्रह्म का जाप है, ओम मंत्र है, इसके जाप से ब्रह्म लोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इतना सा ये बता दिया। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी पुनरावृत्ति के अंदर हैं, वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। और गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि इस ब्रह्म विनाशवान, इसके उपासक विनाशवान। इसलिए ये कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, और वो तत्वदर्शी संत की जब खोज कर लेगा, मेरे बात को तुम आश्रय बना लेगा इस बात का, तो फिर वो प्राणी मेरे इस बात के, इस ज्ञान के आश्रित होकर के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि वो जो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं और कोई संसार की इच्छा नहीं रखते, इसी उद्देश्य से जो भक्ति कर रहे हैं, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु के कष्ट से छूटने के लिए जो यत्नशील हैं, वो उस तत्ब्रह्म को और सारे दात्म को और सारे कर्मों से परिचित हो चुके हैं, तभी वो उस जरा और मरण के छूटने के लिए ही उस तत्ब्रह्म को पहचान चुके हैं, उसकी भक्ति करते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो तो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसकी जानकारी मुझे नहीं है, उसको तत्वदर्शी संतों से पूछो जा करके, वो बताएंगे।
और 8:17 में जाके 23वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की साधना का मंत्र बताया है। ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है। वो सचिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र की साधना है। साधना पुण्यात्माओं अलग चीज होती है और प्राप्य वस्तु उस साधना का परिणाम होता है। जैसे हम हैंडपंप से जल निकालने के लिए प्रयत्न करते हैं, बोकी मारते हैं, पाइप करते हैं, हैंडपंप लगाते हैं, तो हमारी वो पूजा नहीं, वो साधना है, वो प्रयत्न है। उससे जो वस्तु प्राप्त होगी वो हमारा इष्ट है, वो प्राप्य है। तो इन 3 मंत्रों से ओम तत्सत, ओम ये ब्रह्म का जाप है और तत् और सत ये सांकेतिक शब्द हैं अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म के। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया है कि उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, इसके ऊपर को जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है, वो गुप्त है, और नीचे के 3 गुण रूपी शाखा है। गीता ज्ञानदाता ने इतना ही बता दिया। कहते जो इस पूरे संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बता दी तत्वदर्शी संत की, जो 4थे अध्याय में 34वें श्लोक में जिसके से ज्ञान जानने के लिए कहा। फिर ये भी बताया है कि परमेश्वर ने स्वयं आकर 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वा की डार और 3 देवा शाखा हैं। ये पातरूप संसार। तो भगवान स्वयं भी थे, वो तत्वदर्शी संत भी थे, क्योंकि वो मालिक है, वो सब भाषाओं को जानते हैं और वो परम तत्व से परिचित थे। अब उस समय इन्होंने नकार दिया। अब क्या बताता है, 3 गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये तो शाखाएं हैं इनकी संसार रूपी वृक्ष की, ये वैसे अभिन्न अंग है हमारा। तो फिर क्या बताया है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर वापस नहीं आते संसार में, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर से सारे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण हूं, उसके अतिरिक्त कोई साधना किसी की नहीं करनी चाहिए, उसकी भक्ति करो। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम यानी उस सतलोक को प्राप्त होगा, तेरा पूर्ण कल्याण होगा। तो पुण्यात्मा अध्यात्म ज्ञान कंप्लीट है, ना ब्रह्मा को ज्ञान, ना विष्णु को, ना शिव को और ना दुर्गा को और ब्रह्म को भी नहीं। वो कहता है उस तत्वदर्शी संतों को पूछो, तो वो तत्वदर्शी संत ये दास है जब पहचाना जाता है। बोलो सतगुरुदेव। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर जी। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਜਸਲੀਨ ਦਾਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਮ? ਸਰ +2 ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਸਰ ਪਿੰਡ ਸਿਉਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਦਿਨ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਲਈ ਨਾ ਅਖਬਾਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਈਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਲਈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ 1.5-2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਿੱਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਭਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਭਗਤ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਭਗਤ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਿਆ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਕੂੜੇ 'ਚ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੂੜੇ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੂੜੇ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਹਫਤੇ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਊਂਗੀ ਕਿੱਥੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਗੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਕਿੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਭੈਣ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ ਭਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਭਗਤ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੀ ਜੋਤ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਘਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਸਾਜਰੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੇ 8 ਵਜੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇ ਜੋਤ 'ਚ ਘੀ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਮਾਚਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਤਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਉਸ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਡੰਗ ਦਾ ਆਟਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਭਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੋਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਚਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡੋ, ਕਿ ਆਪੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਥਾਪਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 22 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਨਾ ਮੂਰਲੇ ਟਾਇਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਨੋਟ ਹਵਾ ਚੁੜੇ ਆ ਮੂਰਲੇ ਟਾਇਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੇ। 7:55 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ 8 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਭਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਨਾ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਫੜਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 5-6 ਜਣੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਉੜੇ ਆ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਉੜੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਿਨ 1 ਵੀ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੋਤ ਦਾ ਘੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਸੋਈ 'ਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਡੱਬੇ ਭਰੇ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਰਸਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਰਸਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਦ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹੋਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖਾਂ ਸਰੀਣੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਸੀਗੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਵਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਸ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨਾਮ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦਵਾਣੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣੀ ਚੱਲੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਵਾਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਮੰਜੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ TV ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਦੇ ਮੈਂ ਕੰਬਲ ਧੋਏ ਉਸ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਗਈ ਭਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਕੰਬਲ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਦਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਛੱਤ 'ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬਾਦਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੰਧ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਕੰਬਲ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੰਧ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਮੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਗਿਰ ਗਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਮੰਜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਤਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਚੀਕਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਸ ਗਏ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ 16 ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਜੜੁੱਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਪੌੜੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰੀ ਨਾ ਨੀਚੇ, ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਕੰਨ 2 ਟਾਂਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫੇਰ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛੁਡਾਤੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਲਾਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟਿਆ? ਉਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਰਦਾ ਇੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਦਾ। ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਡਰਿੰਕ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਚਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਲਈ। ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲਾਭ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲਾਭ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें